So myself, Arka Ghosh. I am from West Bengal itself, and it's for. I also got offer from Newton. You also got offer letter from me. Yeah, with 40% scholarship, I guess. I also got the same case. Newton. Same story. Same story. ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं लगता कि कैंपस छोटा है तो थोड़ी छोटा है कैंपस, वो तो भाई अगर जिसको कॉलेज लाइफ देखनी है तो वो दूसरे कॉलेज जाओ तो वहाँ प्रेफर कर सकता है जिसको। तो फिर why you choose स्केलर over the Newton? So basically, Internship types, yes, mostly seniors. सीनियर्स नहीं, हम लोग यहाँ फर्स्ट ईयर में हमारा फर्स्ट ईयर में आई है। हमारे फर्स्ट ईयर वैसे सपोर्ट नहीं करते इंटर्नशिप के लिए। अच्छा। समर इंटर्नशिप नहीं समर इंटर्नशिप There are two batches basically for first years, batch A and batch B. So this is my class. Okay, you are from batch A. Yes. फर्स्ट सुबह उठते ही क्लासेस आना होता है, फिर क्लासेस आने के बाद हमारे लैब सेशंस होते हैं जिसमें असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट सॉल्व करने होते हैं जिसमें टीएज होते हैं जो हेल्प करते हैं, और जो असाइनमेंट्स रह जाते हैं वो हम Hi, can you introduce yourself? so myself, Arka Ghosh. I am from West Bengal itself, and it's for first time in Bangalore to Okay, join. so you are on first year student. Yeah, Okay. I also got offer from Newton. You also got offer letter from me. Yeah, with 40% scholarship, I guess. Okay, nice. I gave 2 attempts. At first attempt, my interview was not clear, but second time I cleared that. Okay. Yeah. तो फिर why you choose स्केलर over the Newton? So basically एक फाइट चला था कि what to choose. हाँ. Cause मुझे JU भी मिला था, जादवपुर भी मिला था. So basically I thought कि मतलब न्यूटन स्केलर में compete करो तो I thought कि यार बैंगलोर है तो Bangalore is a tech city. so basically meetup and connections के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे. So that's why I choose स्केलर. Basically मेरे एक भैया भी थे जो स्केलर एकेडमी से आउट थे, तो basically they loved the curriculum. Okay. So that's another reason कि हाँ डिग्री तो एक फाइट था ही कि हो जाएगा, बट आफ्टर दैट देखा हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा. Nice. That's the thing. And can you also introduce yourself? I'm Aditya Kumar Ray. Okay, you are also from first year. हाँ same first. Okay, so where are you from? I'm from Varanasi, UP. Okay, okay. So I also got the same case. Newton. same story. Same story. तो मतलब अलग अलग क्लब्स भी होंगे ना? हाँ, आई एम फ्रॉम OS कोर टीम. मैं ओपन सोर्स कोर टीम में हूँ. ओपन सोर्स. देयर आर मेनी क्लब्स लाइक एकेडमिक्स क्लब्स 3 है, AIML, ओपन सोर्स एंड रिसेंटली एक ओपन हुआ है जो कि आई थिंक स्पेस रिलेटेड कुछ तो है, मतलब फिजिक्स रिलेटेड कुछ है जो नया है, एस्ट्रोफिजिक्स एंड CP. 4 क्लब है हमारे एकेडमिक्स क्लब, और बाकी लाइक कल्चरल क्लब है हमारे पास. डांस क्लब. उसमें सारे इंक्लूडेड है, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, उसमें सारे इंक्लूड है. हमारा ऐसे ही हाउस ऑफ आर्ट्स है, उसी में अच्छा, सब आ हाँ, जाता है, हाँ. ड्रामा, म्यूजिक, डांस. एंड वी आल्सो हैव 4 हाउसेस, मतलब जहाँ पे स्टूडेंट डिवाइडेड है, लाइक फिनिक्स हो गया, टस्कर, लियो एंड कॉन्ग. Friends मेरे न्यूटन में अभी भी है ना. अच्छा, फ्रेंड्स है कोई है पहचान का जिसे हम जानते हो शायद? कुछ नेम हर्षित है, उसे जानता हूँ. टाइटल नहीं जानता, हर्षित हम लोग बोलते थे. Hi everyone. I'm Nathan Dinesh and I'm a first year at Skiller School of Technology. ओके. Yes. First year की So classes. this is the block A of. There are two batches basically for first years, batch A and batch B. So this is my class. ओके, यू आर फ्रॉम बैच A. Yes. सो हेक्टिक रूटीन और No, it's great. It's good. It's enough. Bearable. ओके, It's manageable. मैनेजेबल. सो First, we have a pitch deck where investors will come to pitch in your idea. So the first prize will be of 1 lakh. ओके. The second, third, and fourth will be of 50,000. So you have to present your idea, and if it's sustainable or if it's improvement to the environment, they'll give you. He's working on a project where it's called Cytroid. ओके. So he's building a cycle lock which auto locks itself. When you leave the cycle and when you come back, it locks. तो यहाँ का एकेडमिक्स कैसे लगता है आपको? लाइक एकेडमिक्स वाइज तो बेस्ट है, तभी हमने SST को चूज़ करा था, बिकॉज एकेडमिक्स में कोई शॉर्टेज नहीं है, बिकॉज जो कॉन्टेस्ट होते हैं या फिर जो भी हमें पढ़ाया जाता है बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करा जाता है. एंड इफ समवन इज लैगिंग बिहाइंड तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, TAs BSMs हेल्प करने के लिए, तो किसी को भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील होता. और बेसिक है एकेडमिक्स अच्छा करने के लिए हम बहुत वर्क करते हैं यहाँ पे. एंड आपको क्लासेस, आपका मतलब रूटीन कैसा होता है? क्लासेस के बाद टाइम मिलता है थोड़ा अपने लिए कि पूरा असाइनमेंट? ऐसा होता है कि फर्स्ट सुबह उठते ही क्लासेस आना होता है, फिर क्लासेस आने के बाद हमारे लैब सेशंस होते हैं जिसमें असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट सॉल्व करने होते हैं जिसमें TAs होते हैं जो हेल्प करते हैं,
और जो असाइनमेंट्स रह जाते हैं वो हम यूजुअली ट्राई करते हैं कि हॉस्टल जाके या फिर यहाँ पे रुक के हम सॉल्व कर लें। नहीं तो एक्स्ट्रा सेशंस होते हैं, जैसे कभी मेंटर सेशंस होते हैं या फिर कभी कोई विजिट कर रहा होता है, कोई शूट होता है या फिर कोई इवेंट होता है, जैसे अभी एक नेट मतलब कोई स्टोरी टेलिंग का था ऐसी। तो बेसिक मतलब स्किल्स पे बहुत सारा वर्क होता है। बाकी हॉस्टल में भी हम थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल लेते हैं खुद के लिए। ठीक है, नाइस यार। सो आपका मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का कॉमन हॉस्टल है? फ्लोर डिफरेंट है बट हाँ जैसा मतलब लिफ्ट जैसे रेस्ट्रिक्टेड है? हाँ मतलब फ्लोर पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी नहीं आ सकता उन फ्लोर्स पे। तो आपका हॉस्टल यहाँ से आई थिंक 1.5 किलोमीटर दूर है ना, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होती बार बार ट्रैवल करने में? अभी तो वैसे हम मैनेज कर लेते हैं क्योंकि बसेस होती हैं। ऑल्सो मतलब बैंगलोर का मौसम इज वेरी गुड, तो वॉक करने में हाँ अच्छा वॉक करने में अच्छा ही लगता है क्योंकि ट्रीज हैं और Greenery। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती कभी भी यहाँ पे, तो बेस्ट है। मेरे को भी डाउट था। ओके। आपका मतलब एकेडमिक्स में अभी करंटली क्या चल रहा है? अभी आपका समर वेकेशन आई, 2 लोग से बात हुई थी जून जुलाई में है ना? जुलाई में तो आप लोग का एक ही मंथ का होगा? हाँ एक ही मंथ की हॉलीडेज हमारे। और आपका एंड सेम्स वगैरह? एंड सेम्स हमारे टर्म्स होते हैं, तो हमारे में 4 टर्म्स हैं जिसमें मिड टर्म होता है और एंड टर्म होता है और ऑलमोस्ट हर मंथ एग्जाम होते हैं। मिड टर्म हर फ्राइडे होते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। हम साथ में रिवीजन कॉन्टेस्ट ये भी होता है बट वो सब चलता रहता है। तो मिड टर्म्स और एंड टर्म्स होते हैं और हर टर्म होता है। हमारे 3 टर्म्स कंप्लीट हो गए, अभी 4th टर्म चल रहा है जिसमें मिड टर्म्स कंप्लीटेड है। अब एंड टर्म्स होंगे जून के एंड में और उसके बाद फर्स्ट ईयर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल यार, इतनी जल्दी तुम भी सीनियर बन जाओगे? हाँ अरे रियलाइज नहीं होता कि कितनी यार कितनी जल्दी। हम भी अभी न्यूटन में एडमिशन लिए थे, 1 साल कब हुआ पता नहीं चला और अब हमारे जूनियर्स आ रहे हैं। मेरे को मन नहीं कर रहा सीनियर बनने का। ठीक है, थैंक यू यार। तो जैसे अभी क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा है फर्स्ट ईयर में? हमारा स्टार्ट करा था उन लोगों ने जावा से और साथ में वेब डेवलपमेंट, ताकि हम दोनों चीज़ पे फोकस कर पाएँ। देन वी गॉट इनटू डीएसए। फिर अभी हम जावा पे डीएसए? हाँ जावा में डीएसए और साथ में वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट फ्रंट एंड अभी हमारा हो चुका है। और फिर अभी हमें मतलब वैसे जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ आता है उनके लिए सीपी क्लब्स, वेब डेवलपमेंट क्लब्स हैं, ओएस क्लब्स हैं ओपन सोर्स, ताकि वो लोग एक्सेल कर सकें उन सब चीज़ों में। और अभी हमारा मोस्टली डेटाबेस पे हम काम कर रहे हैं कि सीक्वल और डेटा एनालिटिक्स और अभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ताकि हम और ज़्यादा डीप। ये हमारा 2nd ईयर में होगा डेटाबेस एंड ऑल। और आप लोग का पाइथन पढ़ाए थे क्या? नहीं, हमें पाइथन पढ़ाया नहीं है बट हमारे यहाँ पे AIML क्लब है जिसमें हम मतलब अगर हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम एनरोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली पाइथन इज़ मेन लैंग्वेज फॉर AIML, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। मतलब साइड में एवरीवन नोज एनी अदर लैंग्वेज फॉर श्योर, बट हाँ मेन लैंग्वेज फॉर जो हमें क्लासेस में पढ़ाया जाता है दैट इज़ जावा। सीपीपी नहीं करते? सीपीपी हम सीपी क्लब में करते हैं ताकि मतलब जिनको ऑलरेडी जो बहुत वैरायटी ले रहे हैं। हाँ मतलब जिसको जो समझ में आ रहा है वो उसमें एक्सेल कर सकता है। हाँ, ये भी। हमारे कॉन्टेस्ट में भी ऑप्शंस होते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज में मतलब लिख सकते हैं। मतलब कॉन्टेस्ट में हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको सॉल्व करना होता है जैसे डीएसए में, तो हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हम पाइथन में, जिसको सीपीपी आती है वो सीपीपी में लिख सकता है। हम लोग के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, सीपीपी, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। हमारे में जावा, सीपीपी, सी सारे ऑप्शंस हैं। जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट जेएस। तो मतलब मेन डिफरेंस तो करिकुलम का ही आ जाता है। ये थोड़ा न्यू करिकुलम की तरफ ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा है इन्होंने अपना करिकुलम। जैसे जो NITs और IITs है वो बहुत पुराना करिकुलम फॉलो करती है। मतलब जो करिकुलम होता है वो थ्योरी बेस्ड ज़्यादा होता है। थ्योरी बेस्ड एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स होता है। ऑन अदर साइड जो करिकुलम फॉलो करते हैं ये प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस्ड होता है। तो आप जो आपको मतलब सर अब पढ़ाते भी तो पढ़ाने के साथ साथ आपको असाइनमेंट भी दी जाती है। जो पढ़ाया उसी पे असाइनमेंट होगा, वही क्वेश्चंस करने आपको, और हर मंथ में टेस्ट होता है। तो ऐसे नहीं कि आपने जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं कि वो भूल ही जाओगे जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ेगा, आपका रिविजन भी होगा उसमें। जैसे मान लो हमारा करिकुलम है उसमें एक इंटर्नशिप फेज भी, जैसे मान लो अगर स्टार्टिंग में कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लो सब कहते हैं कि मतलब 2 डिग्री का मतलब कुछ वो पड़ेगा, डिफरेंस वगैरह पड़ेगा, लेकिन हमारे डिग्री का मतलब ऐसा कुछ मतलब मैटर करेगा नहीं आगे जाके, जैसे वो है क्योंकि इसमें हमको आगे मतलब स्किल मैटर करेगा, जहाँ तक हमको मतलब पता है, जहाँ तक मतलब देखा हमने, क्योंकि डिग्री तो हर किसी के पास है और आगे जाके उसका भी कहते हैं इंटर्नशिप वगैरह भी है। तो हमारे पास मतलब अगर कंपनी में जाएंगे, किसी अगर बंदे का डिग्री है उसको मतलब आता नहीं है, लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं है लेकिन हमको मतलब आता है उससे पहले से। हाँ स्किल्स हमने मतलब कर रखी हैं, मास्टर कर रखी हैं, तो और मतलब एडवांटेज हमारे पास रहेगा उसका।
तो ओवरऑल यही है हमारा। ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं लगता कि कैंपस छोटा है तो थोड़ी कमी? छोटा है कैंपस, वो तो भाई अगर जिसको कॉलेज लाइफ देखनी है तो वो दूसरे कॉलेज जाओ तो वहाँ प्रेफर कर सकता है। जिसको कॉलेज लाइफ नहीं देखनी है, पढ़ना है, वो करना है, जिसको फेस्ट वगैरह जिसमें मतलब कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ पे आओ, वो तो उसके ऊपर। ठीक है यार। नहीं आता गाइस? नहीं होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब जिसको अब करना है भाई करना, वो फील होता है, लेकिन वो नहीं मना कर रहे। लेकिन वो तो बस साइड चीजें है ना, मेन तो एकेडमिक्स का ये एट द एंड एकेडमिक्स मैटर करेंगे। एकेडमिक्स ओरिएंटेड हो आप तो आपका वेलकम है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज लाइफ टोटली जीरो है, मजे होते हैं यहाँ भी, लेकिन उतना नहीं जिसको होता करना है वो कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और भी कॉलेज उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ थोड़ा एकेडमिक ओरिएंटेड ज्यादा चलता है। जैसे आप न्यूटन से हो, वहाँ कैंपस मैंने देख रखा है, मैं भी उस साइड हरियाणा से हूँ मैं। अच्छा, वहाँ का हम बड़ा पुणे कैंपस से हैं। तो मैं वहाँ देख रखा है, जो सोनीपत वाला कैंपस है ना, कैंपस बड़ा है, क्योंकि वहाँ वो खेतों साइड में रखा है। यहाँ इतने, यहाँ पे लैंड वगैरह भी इतनी है नहीं यहाँ पे, वैसे मत रखा है क्या। हाँ, यहाँ हर साइड मतलब टेक वगैरह का वो है यहाँ पे। मतलब ये भी तो है ना, एक एरिया का फर्क पड़ता है यहाँ पे। जैसे मान लो कोई कॉलेज वगैरह हो, जैसे मान लो बहुत सारे कॉलेज, मैं वहाँ गया था नोएडा वगैरह, वहाँ एक ही जगह वहाँ पे एक वो नॉलेज पार्क है, वहाँ 100 से ऊपर कॉलेज है, वहाँ सिर्फ गिनती के सिर्फ 2-3 बढ़िया है जहाँ मैं देख के आया था। और वहाँ मतलब वहाँ भी मतलब इतना कुछ एडमिशन वगैरह मतलब बिल्कुल हाई मेरिट पे हो रहा है, और मतलब बहुत कम को मिल रहा है। हाँ, तो जो बाकी हैं उनको भी तो पढ़ना ही है, CS पढ़ना है, तो वो कहीं ना कहीं तो देखेंगे ऐसे तो। हाँ, तो यहाँ भी बच्चे आए हैं तो एंट्रेंस दे के इंटरव्यू दे के आए हैं, कोई वैसे तो आया है। मुझे ऐसे लगता है ना कि फ्रैंकली अभी पहले था वो जमाना कि बीटेक और BSc में होता था कुछ। अब उतना नहीं, अब नहीं, तो वैसे- मेरी स्किल्स डेवलप। वैसे अगर देखा भी जाए, जो बीटेक का जो बन रखा है माहौल वगैरह का, वो हमारे इंडिया में ही है। अगर बाहर जाओगे तो बीटेक को कोई जानता भी नहीं है। BSc होता है। बीटेक को तो कोई जानता ही नहीं है, कुछ जाके पूछोगे हर जगह BSc चल रहा है। और स्टैनफोर्ड वगैरह वहाँ कौन पूछता है, BSc कराते हैं। मतलब तुम 4 सालों में क्या करते हो ज्यादा वो ज्यादा मैटर करता है। एक्वायर करोगे। अब मेरे एक भैया हैं, अभी वो वहाँ पे JP यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो आपने, नोएडा में है। वहाँ से वो जब जो उनकी जॉब लगी है, उनके किसी ने उनके मतलब डिग्री का पूछा ही नहीं है, सीधा स्किल्स के बेस पर उनकी जॉब लगी है। 15-16 LP के एज ए फ्रेशर लगी है। अरे वाह। 15-16 LP है। हाँ, एज ए फ्रेशर सीधा ही मतलब लगी आगे, तो मतलब इंक्रीज ही होएगी। आ सकते हैं आप, बढ़िया कॉलेज है अपना, सही है मतलब करिकुलम के साथ। जिसको मतलब पढ़ाई ओरिएंटेड आना है, कॉलेज लाइफ वगैरह वो तो भाई तुम देख सकते हो कहीं और जाना हो तो, लेकिन किसी को मतलब पढ़ाई मतलब जाना है, करिकुलम अपना वैसा चाहिए। जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पहले उसमें, तो जिसको नहीं पढ़नी वो आ सकता है यहाँ पे। So bro, my name is Harsh and I am from Newton Pune campus. And I am Nitya. So first introduce. Hello, myself Lakshya Mewara, and now let's start at what we are building. We are currently building we are building a game for MetaQuest. So we are doing something related to it, and what we are doing, that is what we can't show you, but I can give you a walk. Hi Raghav, hi Joe. They are from Newton, Pune. They Hello, are visiting I the am campus. Nitya Jain. Hello buddy, I am Harsh. I am also club coordinator of robotics at Newton Pune. So yeah, अभी तो चल ही रहा है हमारा, हमने भी DSA सीखा है एंड फ्रंट फ्रंट में क्या क्या, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट तक हो गया है। अब हम खुद आगे सीख लेते हैं Next.js एंड ऑल, वी नो हाउ टू लर्न एंड एवरीथिंग, सो कर लेते हैं। फिर हम कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। अब जैसे कोई यहाँ पे पिच डेक है, तो बहुत सारे हमारी क्लास के स्टूडेंट्स बाहर से को-फाउंडर CEO तक वो जो भी चल रहा है वहाँ पे, वो सारे लोग आएंगे, हेड ऑफ ग्रोथ वगैरह जो भी है, उन सबके सामने पिच करेंगे एंड लाइक 2.5 लाख समथिंग का कुछ प्राइस पूल है। वाओ, So नाइस। that's all we had to